It is transformation of a state from a democratic state to a dictator state. कंटेंट और इसका लाने का जो मकसद है वो भी गलत है और ये असंवैधानिक स्वरूप का एक बिल है। विधानसभा में जो हाल हुआ उससे हम बहुत नाराज हैं। इससे किसी पे इंडिविजुअल्स पे किसी व्यक्ति पे इस बिल इस कायदे का खिलाफ कुछ यूज नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। Hello and welcome to this week's Pulse Maharashtra with me, Vinaya Deshpande. I am the Maharashtra Chief of Bureau of the Hindu and your host for the show. And today, I'm going to decode the Maharashtra Special Public Security Bill. We are going to talk about why the bill has been controversial since the time it was tabled, brought forth for the first time last year, to what are the processes that have been followed till now, the way the joint committee has been appointed, how after being a multi-party committee where several senior opposition leaders were also present, the civil society now says that it is dismayed and upset with the opposition for not being able to uphold the democratic processes. What exactly happened that the bill was tabled both in the Maharashtra Legislative Assembly as well as the Maharashtra Legislative Council? कुठल्याही लोकतांत्रिक प्रक्रियेच्या विरुद्ध नाही, कोणाचाही आंदोलनाचा अधिकार हे काढून घेत नाही, कोणत्याही लोकशाही मानणाऱ्या आणि भारताचं संविधान मानणाऱ्या संस्थेवर किंवा संघटनेवर कुठलाही घाला घालणारा हे बिल नाही, तर केवळ आणि केवळ नक्षलवादी आणि माओवादी चळवळीशी संबंधित ज्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्या ऑर्गनायझेशन्सला बॅन करण्याकरता हे बिल तयार करण्यात आलेलं आहे. So let us first take you through the timeline of the Maharashtra Special Public Security Bill. What is Maharashtra Public Security Bill? Now this is the bill that was tabled in front of the Assembly and it says a bill to provide for effective prevention of certain unlawful activities of left-wing extremist organizations. Now, the government has said on record that this bill is being brought to curb urban Naxalism in Maharashtra. It has said that 4 more states have a similar piece of legislation and that urban Naxalism is being weeded out from those states. The government has also said that there are over 60 associations and organizations in Maharashtra which the government says have found safe haven in Maharashtra, and for weeding them out, this piece of legislation has been important. Now, the first question that has been raised on this very bill is the ambiguous definitions that the bill has. Nowhere does the bill mention urban Naxalism. Not just that, it doesn't give proper definition of organizations that it defines as urban Naxals or as left-wing organizations, thereby inviting criticism that this bill when converted into a law will probably be misused, and the several provisions that have been given in the bill are ambiguous in nature, which will lend them further for misuse. What had happened after the bill was tabled last year was that it was sent to a joint committee of the Maharashtra legislature, which consisted of key opposition leaders as well as the ruling dispensation. After going through the bill, after holding 5 meetings, the government says the bill was consensually and unanimously cleared by the joint committee without a single dissent note by any of the opposition members. On the 10th of July this year, the bill was tabled during the monsoon session of the Maharashtra Assembly in front of the Maharashtra State Legislative Assembly. Now, except the Communist Party of India, no other political party vociferously unequivocally opposed the bill on the floor of the House. That day, the bill was passed by majority by a voice vote in the Maharashtra Legislative Assembly. After facing a flack by several civil rights organizations for its ambiguous role in the Maharashtra Legislative Assembly, the opposition got its act together when the bill was introduced the next day on July 11th in the Maharashtra Legislative Council. At that time, both Congress as well as the Shiv Sena UBT gave strong speeches in opposition of the bill and called for it to be completely scrapped. Even in the Legislative Council, the bill was passed by a majority by voice vote. Thereafter, the opposition parties submitted a dissent note
to the Legislative Council's chairperson. Now, after this entire process, the opposition parties have started rallying against the bill, which has been sent to the governor for his assent. After his assent, the bill will become a law. In the meantime, Congress has taken up a statewide agitation for burning the draft of the legislation, even as the civil rights activists have said that they are mulling over going to court against this piece of legislation. We have spoken with Ulka Mahajan, who's a prominent civil rights activist and who has been prominently garnering the support of several civil rights organizations from across Maharashtra. I have with me Ulka Mahajan, a civil rights activist. Thank you so much for speaking with The Hindu and for your valuable time. मुझे आपसे पूछना है कि बिल महाराष्ट्र में पिछले साल लेके आई थी सरकार और उसके बाद काफी विरोध हुआ. आपको ये क्यों लगा कि इस बिल का विरोध करना चाहिए? तो जून 2024 में जब ये पहली बार टेबल किया गया, ये इमीडिएटली आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शंस था और पार्लियामेंट इलेक्शंस में महाराष्ट्र के सोशल एक्टिविस्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो भूमिका निभाई और एंटी बीजेपी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की और जनतंत्र को बचाने की एक जो जोर से आवाज़ लगाई और बहुत सारे आम सिटीजन, सोशल एक्टिविस्ट, ये सब एक साथ आकर महाराष्ट्र में काफ़ी प्रक्रियाएं एक साथ बनी और जिसका असर लोकसभा चुनाव में दिखा गया. और जिन राज्यों ने बहुत अहम भूमिका निभाई लोकसभा चुनाव में, उसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसको समझते हुए इमीडिएटली जून 24 में ही बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस तब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे. उन्होंने जून 24 में ये पहली बार टेबल किया. लेकिन तब ये संभव नहीं था क्योंकि असेंबली का जो भी कॉम्पोजिशन था, काउंसिल का और असेंबली का, वहाँ पे वो इजीली पास होना संभव नहीं था. बहुत उसमें अपोजिशन ने आवाज़ उठाई और वो उनको ठंडे बस्ते में डालना था. लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जो उनको जिस तरीके से उनको मेजॉरिटी मिली है, उसके तुरंत बाद उन्होंने फिर से ये फर्स्ट बजट सेशन में ही उसको टेबल किया और इसका नाम उन्होंने दिया है जन सुरक्षा. लेकिन उसका असली मकसद ये है कि वो उनकी सत्ता की सुरक्षा के लिए लाया गया है. जब उनको ये समझ में आया कि आम सिटीजन भी इस तरह से पॉलिटिक्स में एक एक्टिव रोल निभा सकते हैं. तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा में जो दिखा उसके मद्देनजर रखते हुए उसके खिलाफ लोगों को, स्पेशली सिविल राइट्स एक्टिविस्ट को रोकने के लिए ये बिल लाया गया? क्या आपका ये कहना है? एग्जैक्टली, मेरा यही कहना है. क्योंकि इस कानून के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि अर्बन नक्सलिज्म को रोकने के लिए ये कानून लाया जा रहा है. लेकिन एम्स ऑब्जेक्टिव्स का वो एक वर्ड छोड़कर पूरे कानून के सारे जो प्रावधान हैं उसमें कहीं भी ये वर्ड नहीं दिखाई देता. उसका ना डेफिनेशन है और हर किसी चीज़ का, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो इतनी ब्रॉड रखी गई है, वो डेलिबरेटली ब्रॉड रखी गई है ताकि उसमें कोई भी पकड़ में आ सके. नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अब एक चीज़ ये है कि जिसके खिलाफ ये कानून लाया जा रहा है, जिसको ख़त्म करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है, उसका जिक्र भी ना होना कानून में, ये उसमें सबसे बड़ी कमी है. कि नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए आप ला रहे हो तो क्या डेफिनेशन है आपका अर्बन नक्सलिज्म का? वो है ही नहीं उसमें. तो वो सबसे बड़ी कमी है. दूसरी चीज़ ये है कि ये नॉन बेलेबल सारे बना दिए हैं ऑफेंसेस. तीसरी बात है कि आपकी सारी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी. जो ऑर्गेनाइजेशन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की जाएगी, उसके लिए भी एक प्रावधान है कि अगर सरकार को ये लगता है कि फलाना ऑर्गेनाइजेशन इलीगल है तो वो अपने हाथ में अधिकार लेके सरकार वो कर सकती है. बाद में वो एडवाइजरी बोर्ड के पास भेजेगी.
लेकिन उसमें जो 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल समय जाएगा, उसमें बेल भी नहीं मिलेगा। तो ये जो राइट राइट टू एक्सप्रेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर सिटीजन का, वो ही खतरे में है कि आप और अगर आप रैली निकालते हो, आप रास्ता रोको करते हो, आप स्ट्राइक का कॉल देते हो, ये सारा मेनेस टू पब्लिक पीस में आ सकता है। इतना उसका ब्रॉड डेफिनेशन है। तो आज जो ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज आम जनता के अधिकारों के लिए जो प्रोटेस्ट करते हैं, वो सारे प्रोटेस्ट इसके दायरे में आ सकते हैं। और उसमें जो काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीज करने का हक सरकार ने इस कानून के द्वारा अपने हाथ में लिया है। एक और अहम मुद्दा है कि नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, टू प्रिवेंट नक्सलिज्म, बहुत सारे कानून हैं। महाराष्ट्र में भी है, नेशनल लेवल पर भी है। ये दोनों कानून, दोनों स्तर के कानून को देखते हुए इस कानून की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भारतीय न्याय संहिता में भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ गई है। यूएपीए एक्ट है, मकोका एक्ट है, ये काफी है, एडिक्वेट है नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए। ये जब ब्रॉड डेफिनेशंस रख के, लूज डेफिनेशंस रख के ये कानून लाया जाता है, उसके पीछे जो मकसद है वो साफ है कि अभी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने जिस तरह की अवेयरनेस फैलाई है लोगों के बीच में, जिस तरह की जनजागृति की है, उसको सरकार डरती है। तो निडर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, निडर जनता, इससे ये तानाशाही सरकार डरती है, इसीलिए ये कानून लाया गया है। क्या आपको लगता है कि ये बिल अनजस्ट है कि क्योंकि उसमें सिर्फ लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कहा गया है और सदन में ये भी डिस्कस हुआ कि अगर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म का मेंशन यहाँ पे क्यों नहीं है, अर्बन नक्सलिज्म का मेंशन यहाँ पे क्यों नहीं है? एग्जैक्टली तो ये जो कानून का तत्व है कि सब कानून के सामने सब एक जैसे समान होते हैं, उसी का भंग ये कानून करता है। कि एक्सट्रीम लेफ्ट कहते हुए आपने एक्सट्रीम राइट को छोड़ ही दिया। कॉमरेड पानसरे की हत्या किसने की? डॉक्टर दाभोलकर की हत्या किसने की? मालेगांव में जो बम फूटा था, जो एक्सप्लोजन हुआ, उसके पीछे कौन लोग थे? क्या आपको डिसअपॉइंटमेंट लगती है राजनीतिक पक्षों ने इस पे जो भूमिका ली है उसके बारे में, और इसके आगे आपका क्या रवैया रहेगा? विधानसभा में जो हाल हुआ उससे हम बहुत नाराज हैं, क्योंकि जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं, उनके साथ हम पहले से ही एक साथ काम कर रहे थे। इस कानून की हमारा जो विश्लेषण है, हमारी जो आलोचना है, वो भी हम उनके साथ शेयर कर रहे थे। हमने ये मांग की थी कि जो जॉइंट सिलेक्ट कमेटी है, उसके सामने जो 12,700 ऑब्जेक्शंस आई है, उसमें से 9,500 ऑब्जेक्शंस ये कानून पीछे लीजिए, ये बिल रिजेक्ट कीजिए, ये कहने वाली थी। इसके बावजूद हमको हियरिंग नहीं दी गई उस कमेटी के सामने, और एक बिल्कुल तानाशाही तरीके से ही ये बिल आगे लाया गया है। और उसमें बारीकियां जो है कि फाइनल मीटिंग सडनली कुछ नोटिस दिए बिना पोस्टपोन कर देना सिलेक्ट कमेटी की, ताकि जो लोग उसमें उपस्थित होने चाहिए वो नहीं रह पाए वगैरह। ये तो सारा जो रूलिंग पार्टी है उनकी तरफ से की गई साजिश थी। लेकिन विधानसभा में उसके बावजूद जिस तरह का पुरजोर विरोध होना चाहिए था, उसकी ऑब्जेक्शंस रेज होनी चाहिए थी, और उसका निषेध, हमको ये बिल्कुल सबको मालूम है कि वहाँ पे उनकी मेजॉरिटी है दोनों हाउसेस में, तो एनी हाउ वो ये बिल तो पास कर लेते। लेकिन उसमें कमियां क्या है ये कहने का ये मौका था, ये क्यों जनविरोधी है ये कहने का मौका था, और उसको विरोध करना और जनतंत्र के साथ खड़े होना, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और आम लोगों के साथ, आम सोशल एक्टिविस्ट, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले, इन सब के साथ खड़े रहने का मौका जो अपोजिशन को था, वो विधानसभा में उन्होंने खो दिया। और ये जो एक स्पष्ट भूमिका लेकर खड़े होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं हुआ। इसको लेकर बहुत नाराजगी, गुस्सा और असंतोष सिविल राइट्स एक्टिविस्ट में है, और ये हमने ओपनली उन पार्टियों के पास भी पहुंचाया है। क्या आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे? दोनों करेंगे। हम कोर्ट में भी जाने का सोच रहे हैं, और ये आम जनता के बीच में ले जाकर ये कानून का, संविधान का, जनतंत्र का भंग है,
इस बात को लेकर भी बहुत आंदोलन साथ में चलेंगे और बहुत सारी महाराष्ट्र के ऑर्गेनाइजेशंस, सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस इसमें एक साथ है और एक साथ आवाज उठाने को ताकत के साथ तैयार है। We also spoke with Vanchit Bahujan Aghadi leader Prakash Ambedkar, who has called this dictatorship and who has said that he will probably go to the court against this piece of legislation that is still to be approved by the governor. It will be used not only against the dissident but also within the party itself, because the powers are given are so wide. Unlawful activities. Without defining what is unlawful activities, the common man is not able to know. So this is one area where it is prone to be misused. Second is, you might be registered or you might not be registered. Even though you are not registered, you will be hauled up saying that you are a member of this organization. Thirdly, you are a threat to the state. That concept which has come, when I have taken up the responsibility of developing a nation, and I have delegated my powers to somebody to rule, now he is calling me that I am a person who is harming the state. So these are basically broad principles which I have said that goes against the grain of the constitution. The Congress has been at the forefront of opposition against the Maharashtra Special Public Security Bill, and it has said that after directions from the central leadership, it will now rally across the state against this bill. And that is why we spoke to Maharashtra State Congress President Harshavardhan Sapkar to understand the Congress's position, to know why is it that despite being a part of the joint committee which scrutinized the bill, Congress legislators did not give a single dissent note. Not just that, Congress did not even completely oppose the bill on the floor of the House when it was tabled in the Maharashtra Legislative Assembly. Let's listen in. ये जन सुरक्षा बिल के पूरा कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ में है, पूरी ताकत के साथ खिलाफ है, क्योंकि इसका जो कंटेंट और इसका लाने का जो मकसद है वो भी गलत है और ये असंवैधानिक स्वरूप का एक बिल है। दूसरी बात, यहाँ पर जो कमेटी का जो सारा प्रोसीजर हुआ उसमें से 2 ही मीटिंग ढंग से हुई, अन्यथा समय को बदलना, डेट को बदलना, इसके चलते हुए इस कमेटी के साथ भी उसका जो एक ऑपरेशन होता है वो भी एक खोखला स्वरूप उसका था। और उसमें भी उन्होंने चाल रची कि जिस दिन डेट को शिफ्ट करते हुए इस कोई वहाँ पर प्रेजेंट ना रहे, इसके लिए भी उन्होंने डेट को बार बार बदला है। तो इसलिए जो सब कमेटी का जो काम जो ढंग से चलना चाहिए था उस ढंग से काम वहाँ पर हुआ नहीं, और इसके चलते वहाँ पर ऑब्जेक्शन ज़रूर 2 मीटिंग के माध्यम से रेज हुए, मगर लिखित स्वरूप में ऑब्जेक्शन लेने के लिए वहाँ पर समय नहीं मिला और उन्होंने बड़े हड़बड़ाहट में उस कमेटी को उन्होंने उसका काम बंद करते हुए उसकी सिफारिश विधानसभा में की। जाहिर है कि राहुल जी जो बात पूरे देश भर में रख रहे हैं वो संविधान के संरक्षण और संवर्धन की बात है, और ये जो बिल आ रहा है उससे जाहिर है कि गणतंत्र का, लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास इसके माध्यम से हो रहा है। तो राहुल जी की मंशा जो है और गणतांत्रिक उनका जो आग्रह है और संविधान की संरक्षण की उनकी जो भूमिका है वो जाहिर सी बात है। अब इसको लेकर जो आने वाले समय में हम प्रोटेस्ट इसका ज़रूर हम करेंगे। At the center of this entire controversy is the joint committee of the Maharashtra legislature, which was headed by Maharashtra Revenue Minister Chandrasekhar Bawankule. Now, there are several objections that have been raised about the way the committee conducted its proceedings, about how several organizations were not given a public hearing, and how dissent note was not there in given by any of the opposition leaders. We ask all these tough questions to Chandrasekhar Bawankule.
and try and understand why he says that the due process was followed by the BJP and by the government before the bill was tabled in front of the assembly. जो जॉइंट सिलेक्शन कमेटी थी ये विधेयक के लिए, एक कायदा बनाने के लिए, और जॉइंट सिलेक्शन कमेटी में मैंने चेयरमैन करके काम किया है। 5 बैठकें इसमें हुई और इस सारी बैठकों में जो एक्ट है महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक, इसको 5 बार हमने सारे 25 मेंबर के सामने इसको रखा। अपोजिशन के सारे हमारे जो मेन लीडर्स हैं, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटिल, शशिकांत शिंदे, सतेज बंटी पाटिल, आप देख लीजिए कि सारे अपोजिशन के सभी लीडर्स को हमने इस जॉइंट सिलेक्शन कमेटी में लिया था। और इस सिलेक्शन कमेटी में उन्होंने कहा कि और 4 मेंबर कांग्रेस के 2 और राष्ट्रवादी के 2 बढ़ाइए, शरद पवार ग्रुप के हमने और 4 मेंबर बढ़ाए। और कई बार उन्होंने 2-2 घंटा 3-3 घंटा इस बैठकें चली। और उस बैठकों में कभी जयंत पाटिल जी ने कहा, सतेज बंटी पाटिल जी ने कहा कि जिस जिस राज्यों में ये कायदा अमल में आया है वहाँ पे क्या क्या फ़ायदा हुआ है, हमने उनका भी प्रेजेंटेशन किया। इस बिल में उनको जो जो अड़चनें थी कि प्रियम्बलेंस था, जितेंद्र आव्हाड जी ने कहा कि इसका प्रियम्बलेंस आप थोड़ा चेंज करिए। उसमें ये जो कायदा बनाया जा रहा है ये पब्लिक को ऐसा समझ में आ रहा है कि कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति को हम इस कायदे का उपयोग करके शासन कर सकेंगे। जितेंद्र आव्हाड जी के कहने पे हमने उसका जो प्रियम्बलेंस था, उसको जो कन्फ्यूजन था, एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमने एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ये चेंज किया जो उनके मन में था। जितेंद्र आव्हाड जी ने इसका बहुत समर्थन किया। और ये बिल में जो जो उन्होंने कहा 5 बैठकों में, वो सारा हमने सभी का एक एक का वर्डिंग लेकर, एक एक सभी का कहना मानकर हमने सारी चीज़ें उसमें ऐड की। और उनको फिर हमने ये भी समझाया कि ये बिल जो आ रहा है ये आम पब्लिक के लिए, आम संगठन के लिए कोई भी शासन नहीं कर सकता है। केवल महाराष्ट्र में जो युवाओं को, आने वाले पीढ़ियों को अभी नक्सलाइट विचारों पे लेके जाने के लिए जो संगठन काम करते हैं, नक्सलाइट विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, नक्सलाइट विचार तैयार करने के लिए, और महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान इस देश में नहीं चलेगा। ऐसे भी कहने वाले लोग हैं कि कोरा कागज़ है बाबा साहब का संविधान हमारे लिए, ऐसा बोलने वाले लोग, ऐसे लोग हैं वीडियो बनाने वाले, या फिर ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र को आगे नक्सलाइट मूवमेंट की तरफ लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी संगठन के लिए हमने ये कायदा लाया है, बिल लाया है, सारा समझाया। उनने कहा कि हाई कोर्ट के जो जज है वो इसके अध्यक्ष होने चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट के नज़र में है कि ये संगठन इस तरह से काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो संगठन महाराष्ट्र के लोगों को नक्सलाइट विचार की तरफ लेके जा रहा है, पीढ़ियों को, अगर वो संगठन ख्याल में आए सरकार के, पुलिस के, उसके लिए हमें हाई कोर्ट जज के पास जाना पड़ेगा। जो हमारा फोरम है हाई कोर्ट जज का, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज है, उसके बाद उसमें जीपी लेवल का एक हाई कोर्ट के वकील भी है। इस फोरम ने अगर शासन ने वहाँ जाने के बाद, पुलिस ने जाने के बाद, अगर उस फोरम ने कहा यस गो अहेड, उसके बावजूद भी 1 महीना का वो हाई कोर्ट में जाकर इसमें अपना पक्ष रख सकते हैं। सारी चीज़ें पूरी हुई
और मैं आपको बहुत जवाबदारी से कहता हूँ, पांचों बैठकों में बहुत ही दिल खुला चर्चा हुई। मैं चेयरमैन करके, इस बिल का चेयरमैन करके, जो जॉइंट सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन करके उनके सामने बैठकर बता सकता हूँ, इस एक्ट में स्पष्टता से ये बताया गया है, ये बिल या इस बिल से बनने वाला जो कायदा बना है, वो कायदा किसी भी संगठन के, जो सामाजिक संगठन हैं, विद्यार्थी संगठन हैं, कोई भी संगठन प्रोटेस्ट करता है, उस किसी संगठन के खिलाफ नहीं है। पुलिस के नज़र में आता है कि ऐसा संगठन, जो संगठन पीड़ियों को नक्सलाइट मूवमेंट की तरफ लेके जा रहा है, उसी के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है। आप प्रियम्बलस देख लीजिए, प्रियम्बलस में लिखा है, लेफ्ट एक्सट्रीम, मैं जो आपको कह रहा हूँ, एक्सट्रीमेट लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये संविधान को नहीं मानती है, ये कोर्ट को नहीं मानती, संविधान से बनाए हुए संस्था को नहीं मानती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है देश में जो बैन हुई है। जिस राज्य ने कायदा बनाया, चारों राज्यों ने, वह बैन हुई है। महाराष्ट्र में संगठन चल रही है। तो ये संगठन का जब डेटा आता है, उसमें पूरा सारा क्लियर आता है कि ये संगठन इस देश में या महाराष्ट्र में नक्सलाइट विचारों को तैयार करने के लिए काम कर रहा है। उसी को हम इसमें जेरबंद करेंगे। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें प्रियम्बलस में बिल्कुल क्लियर है। और जब ये बिल चल रहा था जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के सामने, तब सारी चीज़ें हर एक वन सेंटेंस को पढ़ के, वन क्लॉज को पढ़ के सारा समझाया गया। जॉइंट सिलेक्शन कमेटी में जो भी ऑब्जेक्शन आए थे, हमने, अगर हमारा ऐसा अगर कुछ हेतु होता या हमारा मन में कुछ, अगर ये बिल के पीछे कुछ अलग से, कुछ हमारा अलग से करने का होता, तो हमने पब्लिक डोमेन में क्यों डालते? पब्लिक डोमेन में डालने के बाद जो जितने भी सजेशन आए हैं, उस सजेशन को लेकर अगर देखें तो हमने उसका सबका सेग्रीगेशन किया, सबका कहना जब हमने स्क्रीन के सामने लाया, तो हमें वहाँ दिखा कि जैसा ये कन्फ्यूजन तैयार किया था जनता के बीच में, किसी को भी अंदर डाल देंगे, इस संगठन को डाल देंगे, उस संगठन को डाल देंगे, तो 800-900 एप्लीकेशन ऐसी थी कि जो वो बिल से कोई रिलेशन नहीं है। जब आप अगर कहते हैं मुझे कि आपको भी डालने वाले जेल में, तो उसको बुलाने का सवाल ही नहीं था। जो 3-4-5 जो ऐसे उसमें निवेदन थे, जो ऑलरेडी अपोजिशन ने ऑलरेडी जो हमारे जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स ने, भास्कर जाधव जी ने उठाए थे, बंटी सतेज पाटिल जी ने उठाए थे, विजय वडेट्टीवार जी ने उठाए थे, ऑलरेडी वो सेम थे, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं था। एक भी ऐसा उसमें 12,500 जो भी आंकड़ा है, इसमें सारे हमारे सेक्रेटरीट ने चेक किया, तो इसका सारे का अर्थ ही था कि आप 9,000 10,000 का, कि भाई आप किसी को भी जेल में डाल देंगे। जब हम कर ही नहीं रहे थे, वो बिल को इस प्रकार से हम प्रेजेंट ही नहीं कर रहे, तो उनको बुलाने का सवाल क्या था? वही बातें होती थी। तो हमने ये कहा कि जो कांग्रेस, शरद पवार गुट, यूपीटी के लोग, जब वो सारे जितने भी इशू आए थे, उस पर ही उस जॉइंट सिलेक्शन कमेटी में उसमें ही चर्चा चल रही थी, तो मुझे लगता है फिर वहाँ कोई बुलाने का चांस नहीं था, या फिर बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। उनके सारे जितने भी हमने उनके सजेशन थे, वो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए थे, इसलिए हमने इतने सारे लोगों को नहीं बुलाया। कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी विद्यार्थी संगठन, कोई भी चैरिटेबल संगठन, कोई भी कोऑपरेटिव संगठन, कोई भी संगठन, प्रोटेस्ट करने वाला संगठन, कोई सोशल मीडिया में खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति, इससे किसी पे, इंडिविजुअल्स पे, किसी व्यक्ति पे इस बिल, इस कायदे का खिलाफ कुछ यूज नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ